تفصیلی خبروں کا کریں گے باقاعدہ آغاز اور ابھی آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے شہر کراچی میں بلدیاتی انتخابات کب ہوں گے شیڈیول جاری کر دیا ہے۔ کراچی میں بلدیاتی انتخابات 23 اکتوبر کو ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے کراچی میں بلدیاتی انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق کراچی ڈویژن کے تمام اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کے لیے پولنگ 23 اکتوبر کو ہوگی، جبکہ حیدرآباد کے اضلاع سے متعلق رپورٹ منگوائی جا رہی ہے۔ حیدرآباد میں بھی بلدیاتی انتخابات کی تاریخ جلد مقرر کر دی جائے گی۔ الیکشن کمیشن کا قومی اسمبلی کے 8 حلقوں میں پولنگ 16 اکتوبر کو کرانے کا اعلان۔ شہر کراچی میں بلدیاتی انتخابات 23 اکتوبر کو ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے نویس سنا دی۔ الیکشن کمیشن نے شہر کراچی میں بلدیاتی انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق کراچی ڈویژن کے تمام اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کے لیے پولنگ 23 اکتوبر کو ہوگی، جبکہ سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد کے اضلاع سے متعلق رپورٹ منگوائی جا رہی ہے۔ حیدرآباد میں بھی بلدیاتی انتخابات کی تاریخ جلد مقرر کر دی جائے گی۔ الیکشن کمیشن کا قومی اسمبلی کے 8 حلقوں میں پولنگ 16 اکتوبر کو کرانے کا اعلان۔ شہر کراچی میں بلدیاتی انتخابات 23 اکتوبر کو ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے کراچی میں بلدیاتی انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق کراچی ڈویژن کے تمام اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کے لیے پولنگ 23 اکتوبر کو ہوگی، جبکہ حیدرآباد کے اضلاع سے متعلق رپورٹ منگوائی جا رہی ہے۔ حیدرآباد میں بھی بلدیاتی انتخابات کی تاریخ جلد مقرر کر دی جائے گی۔ الیکشن کمیشن کا قومی اسمبلی کے 8 حلقوں میں پولنگ 16 اکتوبر کو کرانے کا اعلان۔ شہر کراچی میں بلدیاتی انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا۔ بلدیاتی انتخابات 23 اکتوبر کو ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق کراچی ڈویژن کے تمام اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کے لیے پولنگ 23 اکتوبر کو ہوگی، جبکہ حیدرآباد کے اضلاع سے متعلق رپورٹ منگوائی جا رہی ہے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ پنجاب اسمبلی میں نیا بلدیاتی بل منظور کر لیا گیا۔ صوبہ پنجاب میں 25 یونین کونسل اور 11 میٹروپولیٹن کارپوریشنز ہوں گی۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کا سربراہ میئر ہوگا۔ عوام براہ راست میئر کا انتخاب کریں گے۔ تمام ڈیولپمنٹ اتھارٹیز واسا میٹروپولیٹن کے میئر کے ماتحت ہوگی۔ بلدیاتی بل کے مطابق پنجاب کے دیہات اور شہروں میں یونین کونسلز بنیں گی۔ تحصیل کونسلز اور ٹاؤن نئے بلدیاتی ایکٹ میں ختم کر دیے گئے۔ ہر ضلع میں ڈسٹرکٹ کابینہ اور ہر گاؤں میں ولیج پنچایت کونسل ہوگی۔ صوبہ پنجاب میں آئندہ بلدیاتی انتخابات جماعتی بنیادوں پر ہوں گے۔ پنجاب اسمبلی میں نیا بلدیاتی بل منظور کر لیا گیا۔ پنجاب میں 25 ضلع کونسل اور 11 میٹروپولیٹن کارپوریشنز ہوں گی۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کا سربراہ میئر ہوگا۔ عوام براہ راست میئر کا انتخاب کریں گے۔ تمام ڈیولپمنٹ اتھارٹیز واسا میٹروپولیٹن کے میئر کے ماتحت ہوں گی۔ بلدیاتی بل کے مطابق پنجاب کے دیہات اور شہروں میں یونین کونسلز بنائی جائیں گی۔ تحصیل کونسل اور ٹاؤنز نئے بلدیاتی ایکٹ میں ختم کر دیے گئے۔ ہر ضلع میں ڈسٹرکٹ کابینہ جبکہ ہر گاؤں میں ولیج پنچایت کونسل ہوگی۔ پنجاب میں آئندہ بلدیاتی انتخابات جماعتی بنیادوں پر ہوں گے۔ ملک بھر میں حالیہ سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں، جبکہ سیلاب نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 5 مزید افراد کو نگل لیا۔ آپ کو بتائیں کہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں مزید 5 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ جاں بحق افراد کی اب مجموعی تعداد 1486 ہو گئی، جبکہ زخمیوں کی تعداد 12700 سے تجاوز کر گئی۔ سیلاب اور بارشوں سے مجموعی طور پر سب سے زیادہ 638 اموات سندھ میں ریکارڈ، بلوچستان میں 281، صوبہ خیبر پختونخوا میں 305، پنجاب میں 191، آزاد کشمیر میں 48 اور گلگت بلتستان میں 22 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ ملک بھر میں 11,88,406 گھروں کو جزوی طور پر نقصان پہنچا، جبکہ 5,71,966 گھر مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ 390 پل اور 12,000 سے زائد کلومیٹر سڑکیں بھی متاثر ہوئی۔ آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں 9,18,473 مال مویشی بھی سیلابی ریلوں میں بہہ گئے۔ خبر شامل کریں گے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کے حوالے سے، جنہوں نے بلوچستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا ہے۔ سیلاب متاثرین کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کا بڑا ریلیف
अगस्त और सितंबर के बिजली के बिल मुआफ कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि सितंबर में भी 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों से फ्यूल एडजस्टमेंट नहीं लिया जाएगा। सितंबर में भी 2 करोड़ 10 लाख सार्फिन को 14 अरब रुपए का रिलीफ दिया जा रहा है। सैलाब से बलूचिस्तान का इलाका सोबतपुर बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। मवासलाती निज़ाम, मकानात, फसलें और सड़कें भी तबाह हो गईं। हेलीकॉप्टर से फिजाई दौरा किया है, हर जगह पानी ही पानी दिखाई देता है। वबाई अमराज भी तेजी से फैल रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासरा जिला सोहबतपुर का दौरा। वजीर आजम को ब्रीफिंग में बताया गया कि सोहबतपुर में 1,90,000 घर मुतासिर हुए। मेडिकल कैंप्स में 4 लाख से ज्यादा अफराद को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। सैलाब मुतासरीन के लिए 2,50,000 मच्छरदानियों का इंतजाम हो चुका है। सर, जो लोकल गवर्नमेंट है इसमें जितने भी एरिया सबमर्ज्ड हैं, पिछले हफ्ते से भी पहले ये प्रोक्योरमेंट ऑफ फ्लड इमरजेंसी मशीनरी ये शुरू कर दी थी सर हमने लास्ट वीक। फ्यूमिगेशन और क्लीनलीनेस ऑफ नालाज पे चारों जिलों में तेजी से काम हो रहा है सर। और ये जितने लोकल काउंसिल डिजास्टर मैनेजमेंट मशीनरी है इसको भी एक्टिवेट किया गया है। रेगुलर चेक ऑन सेंसिटिव एम्बैंकमेंट जो शहर के हैं ये उसकी बात हो रही है सर। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इमदादी कामों को तेज करने की हिदायत की और कहा कि सैलाब मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज का फैलाव कंट्रोल करना जरूरी है। ह्यूमन एफर्ट जो है उसको बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल, आप जो आपका इक्विपमेंट है उसको डिप्लॉय करें, आप अल्लाह को छोड़ें, पूरी कोशिश करें। फंड्स की आपको अवेलेबिलिटी है जी सर, बिल्कुल मजीद चाहिए लेट मी नो, बट प्लीज इस काम को तेज मुकम्मल करेंगे। जो वबाई अमराज जो है वो फैल गई तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। वजीर आजम का कहना था कि आपके पास वाफिर मकदार में फंड्स हैं, मजीद चाहिए हो तो बता दें, लेकिन इमदादी काम नहीं रुकना चाहिए। तुर्किया से आने वाले खैमे बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरा इलाकों में दिए जाएं। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर कहते हैं कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में बिजली की बहाली पर काम किया जा रहा है। सैलाब मुतासरीन की तकलीफ को कम करने के लिए अमली तौर पर इकदाम किए जा रहे हैं। कहा कि बिजली की कीमतें कम करने के काम का अमली तौर पर आगाज हो चुका है, जबकि शमसी तवानाई के पहले मंसूबे पर सरमायाकारों को दावत दे दी है। शमसी तवानाई से 60% सस्ती बिजली बनाई जा सकती है। वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक की बात करेंगे। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि सिंध में अप और डाउन ट्रैक पर बहुत पानी है, इसलिए ज्यादा मुसाफिर ट्रेनों का खतरा मोल नहीं ले सकते। ट्रेन चलाने के लिए सीनियर अफसरान की मुशावरत से 2 टीमें तश्कील दे दी हैं, लेकिन ट्रैक की बहाली का टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। रेलवे लाइन के मुकम्मल मुआयने के बाद ही बता सकते हैं कि रेलवे ऑपरेशन कब तक बहाल हो सकेगा। सूबा सिंध का अहवाल बताते चलें। आपको बताएं कि सूबा सिंध में खुले आसमान तले बैठे लाखों की तादाद में सैलाब मुतासरीन बदहाली और बेबसी की तस्वीर बन गए, जबकि पेट भरने को ना खुराक है ना ही इलाज के लिए दवाएं मैसर हैं। बारिशों के बायस मुआशी पहिया भी रोक कर रह गया। खेती बाड़ी और मवेशी पालने का काम भी मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो गया। आपको बताएं कि इलाका मकीन किसी मसीहा के इंतजार में नजर आते हैं। मुतासरीन का बहाली के लिए ठोस इकदाम उठाने का मुतालबा। जहां सैलाब ने मुल्क में तबाही मचा दी, वहीं वबाई अमराज ने मुतासरीन को एक अलग तकलीफ में मुब्तला कर दिया। सैलाब ने अपने साथ न सिर्फ घरों और सड़कों को तबाह किया, बल्कि कई बीमारियों को भी साथ लाया। इन वबाई अमराज का शिकार होने वालों में सबसे ज्यादा तादाद बच्चों की है। गुज़िश्ता दिनों सिंध के जिला खैरपुर में 2 बच्चियां गैस्ट्रो से जा बहक हुई। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक गोट खुदा बख्श में मुतादिद बच्चे मलेरिया और गैस्ट्रो की बीमारियों में मुब्तला हैं। बलूचिस्तान के इलाके नसीराबाद, डेरा मुराद जमाली और जाफराबाद में सैलाब मुतासरीन में नित नई बीमारियां फूटने लगी, जिनमें जल्दी अमराज काफी तेजी से फैल रहे हैं। इसके अलावा गैस्ट्रो और डायरिया की बीमारियां भी शामिल हैं। पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों में भी वबाई अमराज तेजी से फैलने लगे हैं। मुतासरीन में सांस के अमराज, बुखार, हैजा, आंख और जल्दी अमराज में कई गुना इजाफा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों में 54,427 अफराद सांस की बीमारियों में मुब्तला हैं। 42,283 अफराद जल्दी अमराज से मुतासिर हुए हैं। 24,446 अफराद को हैजा हो गया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं कि सूबा सिंध में 1100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। दरिया सिंध के दोनों अतराफ पानी है।
کہا کہ 30 ملین ایکڑ فٹ پانی آسمان سے برسا، اس وقت 7 سے 8 ملین فٹ پانی موجود ہے، ہماری کوشش ہوگی کہ حالات کو بہتر کریں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ سندھ میں 1100 ملی میٹر بارشیں ہوئیں جبکہ 30 ملین ایکڑ فٹ پانی آسمان سے برسا ہے، دریائے سندھ کے دونوں طرف پانی ہے، اس وقت 7 سے 8 ملین فٹ پر پانی موجود ہے، ہماری کوشش ہوگی کہ حالات کو بہتر کریں۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے سیلاب متاثرین کی حالت زار بتاتے ہوئے کہا کہ متاثرین کے سر پر چھت نہیں ہے، گھر گر چکے ہیں، متاثرین کو 1,561 ترپال دی جا چکی ہیں، 17,500 خیمے اب تک سڑکوں پر ہیں۔ تو لوگوں کی جو کرایہ ہے بالکل جائز ہے، اس لیے کہ ان کے سر پہ چھت نہیں ہے، ان کے گھر گر چکے ہیں، پہلے برسات میں ڈوبتے رہے، جب بارش ہو رہی تھی اس میں وہ بھیگتے رہے، اور اب شدید گرمی میں وہ احساس ہے۔ خیر پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ترپال، اس لیے وہ بھی کام آ جاتی ہیں۔ ابھی تک تقریباً 1,49,060 ترپال پی ڈی ایم اے دے چکا ہے، 8,500 این ڈی ایم اے نے پی ڈی ایم اے کو دی تھی، میں نے اس طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کیا ہے، وہ ہے 26,000 تھرو آرمی دیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سندھ حکومت نے اب تک 3.5 لاکھ راشن بیگز تقسیم کیے، 38,000 مچھردانیاں بھی سڑکوں پر ہیں، تقسیم کریں گے۔ بیرون ملک سے جو امداد آتی ہے وہ این ڈی ایم اے کے ذریعے تقسیم ہوتی ہے۔ ڈینگی کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اب روزانہ کے بیسس پہ آپ کو پراپر بریفنگ دی جائے گی۔ ایک دو چیزیں آپ کو بتا دوں، آج ہی ہماری جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ ایک ہے، آرم فورسز کے ذریعے چلتا ہے، ایس پی ڈی اسپیشل پروجیکٹس ڈویژن، میرے خیال ہے ایسی کچھ ہے، ان لوگوں نے ایک بریفنگ دی ہے کہ ان کی کوئی پروڈکٹ ہے جو کہ اب اپروو ہو گئی ہوئی ہے، وہ پریکیور وہ بیچنا چاہتے ہیں اور ہم نے کام خریدنے کے لیے تیار ہے۔ اگر اس کے سارے ہیزرڈز چیک کر لیں کہ کوئی اور نقصان تو اس کا نہیں ہوتا کہ وہ 1 کلو گرام، مجھے اب نمبر یاد نہیں ہے، 1 کلو گرام یا 2 کلو گرام 1 ایکڑ میں ڈالتے ہیں تو ماسکیٹو کے سارے لاروے ان کو مار دیتی ہے۔ سندھ میں ڈینگی کے بڑھتے کیسز کے حوالے سے وزیر اعلیٰ سندھ نے بتایا کہ ڈینگی اسپرے کے لیے کے ایم سی کو ہدایت کی ہے، کورونا کی طرح ڈینگی کے لیے بھی اسپتالوں میں انتظامات کیے جائیں۔ سندھ کے وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن کی پاکستان تحریک انصاف پر تنقید، کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی بار بار حد پار کر رہی ہے، کہا کہ پی ڈی ایم اے نے سندھ کے سیلاب متاثرین کے لیے پنجاب سے آٹا خریدا، آج پنجاب حکومت نے بارڈر پر ان ٹرکوں کو روک کر ایف آئی آر درج کی۔ پی ٹی آئی بار بار حدیں پار کر رہی ہے، پہلے جعلی مہم شروع کی اور اب امدادی اشیاء روک رہے ہیں۔ صوبہ سندھ میں حالیہ سیلاب کے خطرناک آفٹر شاکس آنے لگے ہیں، فصلیں تباہ ہونے سے قحط ساری کا خدشہ بھی بڑھ گیا۔ صوبہ وزیر امتیاز احمد شیخ نے بھی حکومت کو خطرے سے آگاہ کر دیا۔ امتیاز شیخ کہتے ہیں کہ کوئی شہر بچا نہ کوئی گاؤں، سب تباہ ہو گئے، کوشش ہے کہ پانی نکال کر جلد گندم کی بوائی کی جا سکے ورنہ قحط کی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ تو دوسری جانب سندھ کے وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کہ پورا سندھ سیلاب سے متاثر ہوا ہے، کہا کہ جہاں جہاں سے پانی نکالا ہے بحالی کا کام بھی شروع کر دیا، گیسٹرو و دیگر امراض کے لیے ادویات دی جا رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی تبدیلی کی باتیں سازشی عناصر کا پروپیگنڈا ہے، مراد علی شاہ ہی وزیر اعلیٰ رہیں گے، وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ خان صاحب حکومت سے نکلنے کے بعد بالکل بوکھلائے ہوئے ہیں، باولے ہوئے ہیں اور ہر وہ کام کر رہے ہیں جس سے پاکستان اور پاکستان کے ادارے غیر مستحکم ہوں۔ کبھی وہ یہ بیان دے دیتے ہیں کہ ملک پہ ایٹم بم گرا دیا جائے، کبھی کہتے ہیں ایٹمی اثاثے محفوظ نہیں ہیں، کبھی کہتے ہیں خدا نہ خواستہ ملک 3 ٹکڑوں میں بڑھ جائے گا، کبھی اداروں کے لیے، عدلیہ کے لیے، سیاسی جو رہنما ہیں ان کے لیے صرف یہ خود صحیح ہے، باقی سب خراب ہے، اور ان کا جو جہاد ہے وہ صرف حصول اقتدار ہے۔ میں ان کو وارن کرتا ہوں کہ کم از کم جو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کی تقرری ہے اس کو متنازع نہ بنائیں اور شرم کریں، اور جس ملک نے ان کو اتنی عزت دی اس کے خلاف یہ ابھی ساری چیزیں کر رہے ہیں۔ آئی ایم ایف کا جو معاہدہ ہوا اس کو انہوں نے سبوتاژ کرنے کی کوشش کی بعد میں۔
پھر اب جو اتنے مشکل میں ہمارے پاکستانی بھائی بہن ہیں جو سیلاب اور بارش کی تباہ کاریوں میں، اب ان کے لوگ جو امداد کرنے ادارے آ رہے ہیں ان کو غلط پروپیگنڈا کر کے ان کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان کو شرم آنی چاہیے. اب خان صاحب کا ایک ہی ٹھکانہ ہے، پاگل خانہ یا اڈیالہ. اور اب کچھ بات کریں گے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس کی. آپ کو بتائیں کہ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں سیلابی صورتحال اور ریلیف کے کاموں کا جائزہ لیا گیا. وزیر اعلیٰ سندھ کو سیلابی صورتحال پر بریفنگ بھی دی گئی. مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ریلیف کے کاموں میں کوئی کسر نہ چھوڑی جائے. جہاں جہاں سے شکایتیں آ رہی ہیں وہاں پہنچ کر متاثرین کی فوراً مدد کی جائے. دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے سعودی سفیر کی ملاقات ہوئی ہے. اس ملاقات میں صوبے میں شدید بارشوں، سیلاب سے ہونے والی تباہی اور امدادی سرگرمیوں جبکہ متاثرہ افراد کی بحالی پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی سعودی سفیر کو صوبہ سندھ میں ہونے والی تباہ کاریوں پر بریفنگ. مراد علی شاہ نے کہا کہ سیلاب متاثرین کے لیے ریلیف کا کام اب بھی جاری ہے. ایک علاقے کو محفوظ کرتے ہیں تو دیگر ڈوب جاتے ہیں. تذکرہ کریں گے منچھر جھیل کا. آپ کو بتاتے چلیں کہ بپری منچھر جھیل نے 500 دیہات صفحہ ہستی سے مٹا دیے. 20 بچوں سمیت مزید 44 اموات رپورٹ ہوئی. منچھر جھیل پر کرم پور کے مقام پر بند میں 4 شگاف پڑنے سے پانی دریائے سندھ میں جانے لگا جبکہ کوٹری بیراج پر اب بھی اونچے درجے کا سیلاب ہے. جبکہ دادو میں پانی میں پھنسے مریضوں کو ڈرمز اور چارپائیوں کی کشتی میں منتقل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آندھی چلنے سے سیون کی خیمہ بستی میں کئی خیمے بھی اڑ گئے. اور یہاں آپ کو بتائیں کہ صوبہ پنجاب کے دریاؤں ستلج، راوی چناب اور ان کے ملحقہ نالوں میں طغیانی کا خدشہ بڑھ گیا. فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن نے خبردار کر دیا. کہا کہ 18 ستمبر سے دریائے ستلج، راوی چناب اور ان سے ملحقہ نالوں میں پانی کا بہاؤ بڑھ سکتا ہے. آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں اس وقت سیلابی صورتحال ہے. ایسے میں پاک فضائیہ ریلیف آپریشن میں مصروف عمل دکھائی دیتی ہے. متاثرین میں تیار کھانا اور خشک راشن کی تقسیم مرحلہ وار جاری ہے. ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق پاک فضائیہ حالیہ سیلاب سے متاثرہ لوگوں کے مصائب سے بخوبی آگاہ ہے. ان کی بہبود اور بحالی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے. ایمرجنسی رسپانس ٹیمیں سیلاب میں پھنسے لوگوں کے باحفاظت انخلاء میں مصروف عمل ہیں. ملک بھر کے سیلاب زدہ علاقوں میں وبائی امراض کا پھیلاؤ پھوٹنے لگا ہے. آپ کو بتائیں کہ وبائی امراض کا پھیلاؤ پھیل چکا ہے. سندھ میں سانس، دمے اور سینے کی بیماریوں سے 12,027 افراد متاثر ہوئے ہیں جبکہ ڈائریا کے 16,000 اور ملیریا کے 2,000 سے زائد کیسز سامنے آئے. صوبہ پنجاب کے سیلاب زدہ علاقوں میں سانس، بخار، ہیضہ، آنکھ اور جلدی امراض میں کئی گنا اضافہ ہوا. صوبہ بلوچستان کے ضلع ڈیرہ مراد جمالی، نصیر آباد اور جعفر آباد کے کیمپوں میں طبی سہولتوں کی عدم فراہمی، بچے، حاملہ خواتین اور بزرگ بیمار پڑنے لگے. عالمی وبا کرونا وائرس کے تھمتے ہی ڈینگی وائرس نے سر اٹھانا شروع کر دیا. شہر کراچی میں ڈینگی وائرس نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے. کراچی میں ڈینگی کے کیسز بے قابو. 24 گھنٹوں کے دوران مزید 161 افراد ڈینگی وائرس سے متاثر ہوئے. ضلع وسطی میں سب سے زیادہ ڈینگی کے 48 کیسز رپورٹ ہوئے. محکمہ صحت سندھ کے مطابق رواں ماہ 1300 کے قریب افراد ڈینگی سے متاثر ہوئے.
शहर कैट में डेंगू की सूरत हाल तशवीशनाक। शहर के बेशतर अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड दस्तयाब नहीं। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सिंध में 163 केस रिपोर्ट हुए, जिनमें से 161 केसेस का ताल्लुक कराची से है। जिला वस्ती और जिला शर्की डेंगू से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले इलाके हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि जिला वस्ती में 48 और जिला शर्की में 36 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि जिला कोरंगी में 32, जिला जनूबी में 25, जिला मलीर में 8, किमाड़ी में 8 और जिला गरबी में 4 केसेस रिपोर्ट हुए। इसके अलावा हैदराबाद और सखर में सिर्फ 1 केस रिपोर्ट हुआ। महकमे सेहत का कहना है कि रवां माह 1 सितंबर से आज तक कराची में 1277 केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता माह अगस्त में कराची भर में 1265 केस रिपोर्ट हुए। रवां साल सिंध में 3830 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि अब तक सिंध में 9 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। रवां बरस कराची में डेंगू वायरस के 3434 केसेस और 9 अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं। डेंगू की खतरनाक सूरत हाल के बावजूद शहर के किसी भी इलाके में स्प्रे मुहिम शुरू नहीं की जा सकी। शहर कराची में डेंगू की वबा ने खतरे की घंटी बजा दी है। डेंगू वायरस के केसेस में दिन ब दिन इजाफा देखा जा रहा है। बड़े अस्पतालों में बेड्स भी अब कम पड़ गए हैं, जबकि अस्पतालों में प्लेटलेट्स की किल्लत का भी सामना है। निजी और सरकारी अस्पतालों में जगह न होने पर मरीजों को वापस भेजा जाने लगा। मरीजों के अहले खाना अस्पतालों के बेड्स के हुसूलों के लिए एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। कराची में डेंगू वायरस बेकाबू होता जा रहा है और जगह न होने के बायस मरीजों को एक से दूसरे अस्पताल रेफर किया जा रहा है। डेंगू वायरस एक खास किस्म के मच्छर के काटने से फैलता है। यही मच्छर जीका, चिकनगुनिया और दीगर वायरस भी फैलाते हैं। कोरोना की तरह डेंगू की भी 4 अकसाम है। एक शख्स अपनी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा 4 बार डेंगू वायरस से मुतासिर हो सकता है। बैनुल अक़वामी रिपोर्ट्स के मुताबिक हर साल 40 करोड़ अफराद डेंगू का शिकार बनते हैं, जिनमें से 10 करोड़ लोग बीमार होते हैं और कमो बेश 40,000 इस वायरस के हाथों जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। माहिरीन तिब के मुताबिक डेंगू मच्छरों का शिकार हर शख्स बीमार नहीं होता। किसी भी इंसान की कुव्वत मदाफियत उसे इस मर्ज की शिद्दत से बचाती है। डेंगू के शिकार हर 4 में से 1 फर्द में ही इसकी अलामात सामने आती हैं। डेंगू से बीमार होने वाले 20 में से 1 शख्स उससे शदीद मुतासिर होता है। शीरख्वार बच्चों और हामला खवातीन को इसका खतरा सबसे ज्यादा होता है। डेंगू के मरीज में इसकी अलामात आम तौर पर मच्छर के काटने के 4 से 6 दिन बाद सामने आती हैं। मरीज को तेज बुखार होता है, ग़ुनूदगी तारी होती है, सर दर्द, कमर और टांगों में शदीद दर्द महसूस होता है, मतली महसूस होती है और जिस्म बिलखुसूस कमर पर सुर्ख निशान पड़ जाते हैं और इन जगहों पर खारिश भी होती है। अगर किसी शख्स में इनमें से चंद अलामात पाई जाएं तो फौरी तौर पर अपने मुआलिज से राब्ता करे और जितना मुमकिन हो आराम करे। माहिरीन का कहना है कि बुखार पर काबू पाने और दर्द को दूर करने के लिए पैरासिटामोल लें, एस्प्रिन या आइबोप्रोफेन ना लें। जिस्म में पानी की कमी ना होने दें। इसके लिए ऐसे मशरूबात इस्तेमाल करें जिससे जिस्म में नमकियात की कमी ना हो। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि सूबा सिंध के 24 अजला को मच्छर मार स्प्रे मशीनों के लिए 48 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। कराची को ताहाल रकम जारी ना हो सकी। सिंध हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि कराची में पहले ही अच्छी तादाद में फ्यूमिगेशन की मशीनें मौजूद है। कराची की 30 यूनियन काउंसिलों में रोजाना मच्छर मार स्प्रे भी किया जा रहा है। की हिदायत थी कि हम 11और यहाँ आपको बताते चलें कि एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शहर के रहमतुल्लाह शेख कहते हैं कि सैलाब मुतासरीन को सहूलियात पहुँचाने में ऐसा किरदार अदा करना ज़रूरी था जो कि DMCs की जानिब से अदा किया गया। सैलाब मुतासरीन के लिए जब से रिलीफ कैंप कायम हुए हैं, सहूलियात पहुँचाने में हर मुमकिन इकदामात किए हुए हैं, ताहाल कोशिश भी कर रहे हैं। USAID के नुमाइंदगान के हमरा पाकिस्तान स्कूल सचल में कायम
फ्लड रिलीफ कैंप का मुआयना करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर बल्दियेश्वर के रहमतुल्लाह शेख का कहना था कि सैलाब मुतासरीन को सहूलियात पहुंचाने में हर मुमकिन इकदाम किए, ताहाल कोशिश कर रहे हैं कि सैलाब मुतासरीन को किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। कोशिश है कि सैलाब मुतासरीन को किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। उन्होंने यूएसएड का उनकी आमद पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि यूएसएड की जानिब से तारीफ पर मजीद हौसला बढ़ा है और कोशिश करेंगे कि सैलाब मुतासरीन की जितनी ज्यादा खिदमत कर सकते हैं वो की जाए। इस मौके पर डायरेक्टर डीएम तौकीर अब्बास और डायरेक्टर एडवर्टाइजमेंट हम्माद एंडी खान ने यूएसए टीम को सैलाब मुतासरीन के हवाले से आगाही भी फराहम की। डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर जिला बस्ती तहा सलीम कहते हैं कि लियाकताबाद जोन में सफाई सुथराई और सीवरेज के मामलात में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अहलियान जिला बस्ती को साफ और शफाफ माहौल की फराहमी में हर मुमकिना इकदाम कर रहे हैं। अवामी शिकायत पर लियाकताबाद नंबर 4 अमजद साबरी डिस्पेंसरी के अतराफ और लियाकताबाद नंबर 2 रहमानिया मस्जिद के अतराफ सफाई सुथराई और सीवरेज सिस्टम की सूरत हाल का जायजा लेने के मौके पर डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर जिला बस्ती तहा सलीम का कहना था कि सीवरेज के जमा शुदा पानी की निकासी के लिए इजाफी मशीनरी इस्तेमाल में लाई जाए। इलाका मकीनों की जानिब से सीवरेज के हवाले से शिकायत का फौरी अजाला किया जाए। सफाई सुथराई और सीवरेज सिस्टम की खराबी के बायस इलाके में जमा होने वाले गंदे पानी की वजह से पैदा होने वाले मसाइल से डिप्टी कमिश्नर जिला बस्ती तहा सलीम को आगाह किया, बल्कि उनकी आमद पर शुक्रिया अदा करते हुए उम्मीद जाहिर की कि अब उनके मसाइल जल्द अज जल्द हल हो जाएंगे। तहा सलीम ने इलाका मकीनों के मसाइल को बगौर सुना और मुतालिका बल्दियाती अफसरान को शिकायत का फौरी अजाला करने के लिए हिदायत भी जारी की। उन्होंने एक हफ्ते में लियाकताबाद में सीवरेज सिस्टम की बहाली और कूड़ा करकट की सफाई को मुमकिन बनाने का हुक्म दिया। इस मौके पर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अफसरान भी उनके हमरा थे। बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा इंसदाद तजावुज़ात सेल का जिला शर्की और जिला जनूबी में ऑपरेशन। सड़कों और फुटपाथ पर गैर कानूनी बनाए गए चबूतरे, दीवारें और दीगर पुख्ता तजावुज़ात मिसमार कर दी गई, जबकि प्लास्टिक बैग्स और डेंगू वायरस के खात्मे के लिए भी आगाही मुहिम चलाई। सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद की जेर निगरानी डिस्ट्रिक्ट की जमशेद डिवीजन सोल्जर बाजार के अतराफ में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। रोड और फुटपाथ पर गैर कानूनी बनाई गई दीवारें, चबूतरे और दीगर तजावुजात को मिसमार किया गया और सामान भी जब्त कर लिया गया, जबकि प्लास्टिक शॉपिंग बैग, प्लास्टिक की थैलियों पर पाबंदी के हवाले से आगाही मुहिम भी जारी रही। ऐलानात और पंफलेट्स भी तकसीम किए गए। डिस्ट्रिक्ट साउथ सदर डिवीजन के इलाके मेन एम जिना रोड में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। रोड और फुटपाथ पर रखे गए ठेले, पथारे और दीगर सामान जब्त किया गया। कार्रवाई डायरेक्टर साउथ जैन मलिक, डिप्टी डायरेक्टर नुमान अहमद खान ने अमले के हमरा की। डिस्ट्रिक्ट की गुलशन इकबाल डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में प्लास्टिक के शॉपर, शॉपिंग बैग्स और प्लास्टिक की थैलियों पर पाबंदी के हवाले से आगाही पंफलेट्स भी तकसीम किए गए, जबकि मुतादिद प्लास्टिक की थैलियां जब्त की गयी। साथ ही डेंगू से बचाव के लिए नर्सरियों में बनाए गए पानी के टैंकों को ढकने की हिदायत की गई। नॉर्थ नाज़िमाबाद बफर जोन डिवीजन में भी डेंगू वायरस के खात्मे के हवाले से आगाही मुहिम की कार्रवाई अमल में लाई गई। जमा शुदा गंदे पानी को जाया किया गया। कराची सेंट्रल जेल के अतराफ तबाहाल सड़कें शहरियों के लिए बवाले जान बन गई। सीवरेज के मफलूज और उबलते गटरों के सबब मरकजी शहरा का हाल बदहाल हो गया। ट्रैफिक जैम समेत हादसात का होना भी मामूल बनकर रह गया। उबलते गटर, बहता सीवरेज और सड़क की बदतरीन टूट फूट, यह मंजर कराची सेंट्रल जेल की मरकजी सड़क का है, जो मसाइल में घिर कर इंतजामिया की तवज्जो के मुंतजर है। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड समेत मुतालिका महकमों की नाअहली के सबब जेल रोड की मरकजी सड़क का हाल बेहाल है, जहाँ सुबह शाम के औकात में ट्रैफिक जैम होने समेत हादसात का होना गैर मामूली हो गया है। शहरी कहते हैं हसास मकामात का ये हाल है तो पूरे शहर का तो अल्लाह ही हाफिज है। 10-15 मिनट का सफर होता है तो वो घंटों के हिसाब में चला जाता है। हादसात की ये है कि रोड खोद के डाले में आए दिन देखिए, कार वालों को तो इतना मसला नहीं होता, मोटर बाइक वालों का बहुत ज्यादा मसला होता है और हादसात के शिकार भी मोटर बाइक वाले ही होते हैं। ये बारिशों का तो ये कहा जाएगा कि जी बारिशें हो रही हैं, इस वजह से ऐसा है। ये बारिशों के अलावा भी ऐसी कुछ है।
ये इस पे तवज्जो नहीं देती क्योंकि कराची जो है ना एक लावारिस शहर हो गया, ठीक है। वो सभी सिर्फ एक ऐसे नहीं, कराची पहले एक रूसल बिलात हुआ करता था, रोशनी से शहर कहलाता था। रातों को आज आप दिन के अंदर भी जो है ना डकैतों से बच रहे हैं, ना इन चीज़ों से बच रहे हैं। मसला सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पे जब भी पानी खड़ा होता है ना, ज़रा सी बारिश से पानी खड़ा हो जाता है, इसको एक मरतबा इसका सिर्फ बैलेंस ही अगर ठीक कर देना रोड का, तो ये सब सही हो जाएगा। एक सेंसिटिव जगह है, लोग निकल के यहाँ से तारिक रोड की तरफ जा रहे होते हैं, जेल रोड की तरफ जा रहे होते हैं, हिल पार्क, शारा फैसल जा रहे होते हैं, लोगों को इतनी शदीद परेशानी यहाँ पर हो रही होती है। तो इसको थोड़ा सा भी अगर ये मामला इसको सही कर दें तो ये सही हो सकता है, अगर ये चाहें तो। अवाम ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि मुतालिका महकमे कराची के शहरियों को मयारी सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए तबाह हाल सड़कों की असर नौ मुरम्मत को यकीनी बनाए, ताकि शहरियों का अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचना बगैर किसी दुश्वारी के मुमकिन हो सके। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ अहमद इसाक, मेट्रो वन न्यूज, कराची। तो दूसरी जानिब शहर कराची के इलाके औरंगी टाउन में कचरे के ढेर लग गए। गंदगी और नक्कासी के लिए खुले नाले शहरियों के लिए बवाले जान बने हुए हैं। औरंगी टाउन की जिस गली या सड़क से गुजरो मसाइल मुंह चढ़ाते नजर आते हैं। एक तरफ कचरे के ढेर तो दूसरी जानिब खुले नाले गुजरने वालों के लिए दर्दे सर बने हुए हैं। खुद को खतरे में डालकर मोटरसाइकिल सवार गुजरने पर मजबूर हैं। इलाका मकीन कहते हैं इस नाले की खुद सफाई करके जमा पानी साफ किया, कोई सुनने वाला नहीं। औरंगी टाउन में रहते हुए मुझे तकरीबन 52 साल हो गए। इस 52 साल पहले जो औरंगी टाउन था, वो 52 साल के बाद भी औरंगी टाउन की वही हालत है। बनारस से लेके और गुलशन बिहार या गुलशन इत्यादि टाउन तक तमाम रोड टूटे फूटे हैं। गलियों की हालत इंतहाई ख़राब है। आई ब्लॉक औरंगी टाउन के अंदर पानी का बहुत बड़ा मसला है। बारिश की वजह से सीवरेज का लाइन जगह जगह से गटर उबल रहे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। बारिश तो बारिश, यहाँ सबसे बड़ा जो मसला है वो लाइट का मसला है। लाइट होती ही नहीं है यहाँ पे, ना बारिश का कोई इंतज़ाम है, किसी चीज़ का कोई इंतज़ाम नहीं किया हुआ है। बस सिर्फ जब वोट का टाइम आता है आगे ऐसे खड़े होते हैं जैसे मतलब अब हमारे अल्फाज में अगर हम बोले तो बेकारी बोलेंगे, यही बोलेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं बोलेंगे। गंदगी और जमा गंदा पानी मोजी अमराज का बायस बन सकता है। शहर में गंदगी की वजह से मुख्तलिफ बीमारियां भी फैलने लगी हैं, जिससे बचाव के लिए शहर में सफाई बेहद जरूरी है। कैमरामैन सैयद ताबिश के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो वन न्यूज, कराची। कराची के शहरियों के लिए गलियों सड़कों पर जमा गंदा पानी अजाब बन गया। शहरियों का तालाब बने सीवरेज के पानी से गुजरना मुहाल हो गया। मानसून की बारिश के तमाम स्पेल तो टल गए, मगर सड़कों गलियों में जमा सीवरेज पानी शहरियों के लिए काले पानी की सजा बन गया है। गुले राना कॉलोनी सुलझे बाजार में जमा पानी इलाका मकीनों और गुजरने वालों के लिए अजाब बना हुआ है। मस्जिद के साथ गंदे पानी की झील नमाजियों के लिए परेशानी का बाइस है। लोगों का कहना है कई माह से सड़क का यही हाल है। बहुत परेशानी है, लेडीज बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है। तकरीबन 3 महीने से ऊपर हो गए इस मसले को चलते हुए। हर जगह पे वहाँ पे भी दरखास्तें भी दे दी, वो मशीनें भी बुलवा के लगवा दी, मगर नहीं खुल रही है। घर लेने यहाँ की डलवाई है। शहर कराची के इलाके गुलशन इकबाल नेशनल स्टेडियम के करीब सीवरेज की लाइन फट गई। सीवरेज की लाइन फटने से पानी नेशनल स्टेडियम में दाखिल होने लगा। इंग्लैंड क्रिकेट टीम की पाकिस्तान आमद से खबर, नेशनल स्टेडियम दरिया बन गया। ज़ेर सतह होने पर पानी तेजी से नेशनल स्टेडियम में जमा होने लगा। पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए इंग्लैंड की टीम आज सुबह कराची पहुंचेगी। आपको बताएं कि पाकिस्तान और इंग्लैंड टीमों का हफ्ते को नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन तय है। नेशनल स्टेडियम के करीब सीवरेज लाइन फट गई। सीवरेज की लाइन फटने से पानी नेशनल स्टेडियम में दाखिल होने लगा। इंग्लैंड क्रिकेट टीम की आमद से कबल नेशनल स्टेडियम दरिया का मंजर पेश कर रहा है, जबकि ज़ेर सतह होने पर पानी तेजी से नेशनल स्टेडियम में जमा होने लगा। पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए इंग्लैंड की टीम आज सुबह कराची पहुंचेगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।